وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے ان کے کیمپ آفس پرگتی بھون میں جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں قائدین نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، قومی سیاست میں حصہ لینے کے سلسلے میں TRS کے پلینری سیشن میں منظورہ قرارداد، مرکز ریاست تعلقات، متبادل ایجنڈوں پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے صدر نشین محمد امتیاز اسحاق نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی دعوت افطار میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ گنگا جمنی تہذیب کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ TRS واحد پارٹی ہے جو گنگا جمنی تہذیب کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ BC تحفظات میں اضافے کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتے ہوئے قرارداد منظور کر کے یہ قرارداد مرکز کو روانہ کی گئی ہے۔ حکومت تلنگانہ ہمارے ہانریبل چیف منسٹر جناب KCR صاحب کی جانب سے روزگار کے لیے افطار کے پارٹی کا انتظام کیا جا رہا ہے حکومت تلنگانہ کی جانب سے۔ میں سبھی تلنگانہ کے مسلم بھائیوں سے جن کو بھی انویٹیشن ملتا ہے وہ ضرور آئیں، ہمارے CM صاحب کی دعوت کو قبول کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت تلنگانہ جب سے حکومت بنائی ہے، جب سے آفیشیلی افطار پارٹی کرتے آ رہی ہے، روزگار کے احترام کرتے ہوئے، بلکہ مسلمانوں کے لیے افطار پارٹی نہیں بلکہ ہر قوم کے لیے، جیسا ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے، ہمارے کرسچن بھائیوں کے لیے، پھر مسلم بھائیوں کے لیے، جو ہمارے CM صاحب چاہتے ہیں کہ جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو زندہ رکھے، اسی کے لیے جو ہے روزگار کا احترام کرتے ہوئے افطار پارٹی کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ میں سبھی میرے بھائیوں سے، بزرگوں سے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دعوت کو قبول کریں اور اس دعوت کو کامیاب کریں افطار پارٹی کو، اور آپ ثابت کر دیں کہ یہ واقعی ایک سیکولر حکومت ہے، تلنگانہ حکومت جو KCR صاحب کی حکومت ہے، سیکولر حکومت ہے۔ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے TRS پارٹی کا جو فارمیشن ڈے 21 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اس دوران ہمارے CM صاحب کا جو اسپیچ تھا، جو میسیج تھا سیکولرزم کے اوپر، آج تک کسی CM نے اتنا کھل کے سیکولرزم پر بات نہیں کیا۔ وہ جو میسیج کل کا تھا، اس میسیج سے صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ TRS پارٹی ہی ایک واحد پارٹی ہے جو سیکولر پارٹی گنگا جمنا تہذیب کو زندہ رکھی ہوئی ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے مودی کو ٹارگٹ کیا ہے، BJP کو ٹارگٹ کیا ہے، کسی CM نے نہیں کیا آج تک۔ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ ہمارے CM صاحب نے کھل کے بولا ہے سیکولرزم کے اوپر۔ اور رہی بات اور ریزرویشن کے اوپر، پھر ایک بار ہم لوگ جو ہے ریزرویشن پاس کر کے بھیجے ہیں کل یہاں سے سینٹرل گورنمنٹ کو، پھر ایک بار جو ہے ریزرویشن پاس کر کے بھیجیں، جلد سے جلد ریزرویشن کو عمل کیا جائے۔ BC ریزرویشن کوٹا جو ہے اس کو 50 سے بڑھ کے 70 تک کرنے کے لیے ہم نے آلریڈی ریکویسٹ کیا تھا، پھر ایک بار کل ریزرویشن کو بڑھانے کے لیے ایک ریزولوشن پاس کر کے بھیجا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے میں کل کے CM صاحب کے بیان کے بعد تلنگانہ کے جو مائنورٹیز بھائی ہے وہ فخر کرنا کہ ہمارا چیف منسٹر صاحب ایسے سیکولر ہے، کیونکہ اتنا کھل کے بولنے والی شخصیت کوئی نہیں ہے۔ تو جب اتنا ہمارے CM صاحب اتنا کھل کے سیکولرزم کے اوپر ایک کمیونٹی کو ہم سپورٹ کرتے آ رہے ہیں، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ افطار پارٹی کو قبول کرے، زیادہ سے زیادہ مقدار میں آ کر افطار پارٹی کو قبول کر کے یہ ثابت کر دے کہ ہم بھی چیف منسٹر KCR صاحب کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، یہ ثابت کریں۔ میں آپ سب سے پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ اس دعوت کو قبول کریں، روزداروں کے جو ہے احترام کریں، کل آ کر جو ہے کامیاب کریں۔ اسکائی IMF لمیٹڈ کے بانی شیخ عبدالقادر کی جانب سے ملک پیٹ میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ اس دعوت افطار میں مینیجنگ ڈائریکٹر ساجدہ، وینا، گوپی، سرسوتی کے ساتھ ساتھ دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر شیخ عبدالقادر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کمپنی کے مسلم اور غیر مسلم تمام ملازمین نے اس دعوت افطار میں شرکت کرتے ہوئے اتحاد اور یکجہتی کی مثال قائم کی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی JAC نے مطالبہ کیا ہے کہ ریاستی حکومت آئندہ 2 سال تک پولیس کانسٹیبلز اور سب انسپکٹرز کے عہدوں کے لیے اعظم ترین حد عمر میں اضافہ کرے۔ JAC کارکنوں نے ان کے مطالبے کی تکمیل پر زور دیتے ہوئے عثمانیہ یونیورسٹی میں مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت نے سینکڑوں خواہش مندوں کے لیے نہیں سوچا۔ انہوں نے کہا کہ اعظم ترین حد عمر میں اضافہ نہ کرنے سے نوجوانوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی غلطی کے لیے بے روزگاروں کو سزا دینا مناسب نہیں ہے. మీరే ఆలోచించండి. ఖచ్చితంగా మేము దానికి సంబంధించిన ఫిట్నెస్గానే మేము క్వాలిఫై అయితేనే కదా మీరు జాబ్ ఇచ్చేది. మీరు ఎక్కువ మందికి మీరు అవకాశం ఇస్తేనే కదా సార్ ప్రతిభావంతులు బయటికి వచ్చేది. అందుకనే మీరు మాకు ఎక్కువ మందికి అవకాశం ఇవ్వండి. మాలాంటి సీనియర్లు మీ సమాజానికి సేవ చేసే మేము ఉద్యమంలో పాల్గొనలేము సార్. మేము కూడా మాకు ఏదో కర్నూలు సావుకు అనేక కారణాలు అన్నట్లు మాకు జాబ్ మిస్ అయింది. పోయిన సార్ ఒక మార్కులో 2 మార్కులో మిస్ అయిపోయింది. ఆ కారణం ఏదైనా కావచ్చు. దయచేసి మాకు చివరి అవకాశం ఉంది. మళ్ళీ ప్రయత్నిద్దామంటే కూడా మా వయసు సహకరించేది. దాంతోపాటు చదివే పరిస్థితి కూడా మాకు లేదు సార్. ఆ అప్పులు ఇప్పటికే అయిన అప్పులు తీర్చుకోలేక మేము ఎంతో బాధలు పడుతున్నాము. దయచేసి మీరు మా మీద నిరుద్యోగుల మీద ఈ చివరిసారిగా ఈ కరోనా కాలము ప్రభుత్వాలు, దేశాలు, రాష్ట్రాలు, ప్రతి కుటుంబం, ప్రతి మనిషి సఫర్ అయ్యారు. మేము కూడా చాలా సఫర్ అయ్యారు. విద్యార్థులు ఇంకా ఎక్కువ సఫర్ అయ్యారు. మీరు భారీ నోటిఫికేషన్ వేశారు. ఆ ఆశలు మాకు నిరాశలు అవుతారు కాకుండా మా ఆశలు మీరు నిలబెట్టండి. మీకు జీవితాంతం మీ కుటుంబానికి మీకు అందరికి రుణపడి ఉంటాం సార్. दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद में जुम्मतुल विदा के मौके पर मुसलमानों ने बादिद नम माह सयाम को अलविदा किया और रक्त अंगेज दुआएं की. तमाम मसाजिद मुसल्लियों से पुर हो चुकी थी और बाद मसाजिद के बाहर सड़कों पर तक सफ़ें बिछ गई थी. तारीखी मक्का मस्जिद में जहां सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया, हज़ारों अफराद ने नमाज जुमा अदा की. 12 बजे तक मक्का मस्जिद का सहन भर चुका था. देखते सफ़ें मक्का मस्जिद के बाहर और चार मीनार के करीब तक पहुंच गई थी. इमाम व खतीब मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी ने खुतबा दिया और इमामत की. मक्का मस्जिद के बाद दूसरा बड़ा इज्तिमा शाही मस्जिद बाग़यामा में देखा गया. मौलाना मोहम्मद अहसन बिन अल-मोमी ने खुतबा दिया और इमामत की. शहर की दीगर दिन मसाजिद में बड़े इज्तिमा देखे गए. उनमें मस्जिद चौक, मस्जिद अफजलगंज, मस्जिद हकीम वज़ीर अली फ़तेह दरवाज़ा, मस्जिद सईफ़ आज़मपुरा, जामा मस्जिद मल्लेपल्ली, मस्जिद अजीज़िया मेहदीपट्टनम, जामा मस्जिद मुशराबाद और जामा मस्जिद सिकंदराबाद शामिल हैं. सिटी पुलिस ने तमाम मसाजिद बिलखुसूस पुराने शहर में सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए थे. मक्का मस्जिद को जाने वाली शाहराहों को चारों सिम से सुबह 10 बजे से ही बंद कर दिया गया था. चार मीनार के दामन में पुलिस के ज़ायद प्लाटून्स को तैनात किया गया था. कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने खुद चार पुलिस स्टेशन से पुलिस बंदोबस्त की निगरानी की. एडिशनल कमिश्नर ऑर्डर DS चौहान, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक M रंगनाथन, डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन चैतन्या और दीगर आला अहदेदार भी चारमीनार के पास मौजूद थे. सदर मजलिस और पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वह हालात से खाइफ ना हो बल्कि हालात का डटकर मुकाबला करने के लिए कमर बस्ता हो जाएं. बैरिस्टर अवैसी मक्का मस्जिद में जुम्मतुल विदा के मौके पर जलसे यौमुल कुरान से खिताब कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों और अल्लाह की राह में मशक्क़त उठाने वालों को उसका अजर देने का वादा किया है. सदर मजलिस ने मुसलमानों से कहा कि वह हालात के नशे व फराज से परेशान ना हो. मसाइब और अलम में अल्लाह ताला उनके लिए कई रास्ते खोल देता है बशर्ते कि ईमान और यकीन को मजबूत बनाया जाए. उन्होंने मध्य प्रदेश के खरगांव में और दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में इनाज़मी कार्रवाई की मजम्मत की और कहा कि हुकूमतों को ऐसी कार्रवाई करने का कोई इख्तियार नहीं है. मुज़म्मिन को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और सज़ाओं का तयन करने के लिए अदालतें मौजूद हैं. इब्तिदा में अखुदपुर के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने खैर मकदम किया. कारी मलिक मोहम्मद इस्माइल अली खान की क़िरात कलाम पाक से जलसे का आगाज़ हुआ. शफी कादरी और राशिद अब्दुल रज़ाक मेमन ने बारगाह रिसालत माब में नजरान क़ियादत पेश किया. मजलिसी अरकान असम्बली कॉरपोरेटरों के अलावा मजलिस क़ायदीन की बड़ी तादाद जलसे में शरीक थी. कौमी मीडिया के नुमाइंदे भी जलसे यौमुल कुरान में बैरिस्टर अवैसी की तकरीर सुनने और फिल्म बंद करने के लिए मौजूद थे. नाम याद रखो जिसने हजरत बिलाल को तकलीफें दी थी. जंग शुरू होती है, 313 का लश्कर है. सारी इंसानियत की तारीफ को जवाब दिया जा रहा है कि देखो हम अल्लाह की कुदरत पर भरोसा करते हैं, हम ताकत और कुव्वत पर नहीं, हम अल्लाह की कुदरत पर भरोसा करते हैं. और जब जंग का मैदान शुरू हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम से पूछा, उमर बताओ क्या हिकमत होनी चाहिए, जंग की क्या करना चाहिए? तो फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह, उन मुशरिकीन में मेरा मामू है, मेरा रिश्तेदार है, वो मैं देख लूंगा. जिसका रिश्तेदार है वो उसको देख ले. आप सोचिए
फारूक आजम के सामने मामू आए कदम, अबू उबैदा बिन जर्रा के सामने बाप आए। उलमा ने लिखा कि अबू उबैदा बिन जर्रा ये देख रहे थे कि मोहम्मद का दीन या मेरा बाप, मैं किसको बचाऊंगा? तो अबू उबैदा बिन जर्रा ने कहा कि बाप मोहम्मद के दीन पर कुर्बान, बाप का काम तमाम। मुसैब बिन उमर के भाई आए, सगे भाई बचपने में साथ थे, मगर कहा नहीं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इमाम अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी अपनी किताब रहमतुल्लाह अलैह मदारिज नबुवा में लिखते हैं कि अल्लाह की मदद का नुज़ूल होना शुरू हुआ। सूरह अनफाल जाकर पढ़िए, मैं भी उलमाओं के पैरों के पास सुनकर यह कह रहा हूं। सूरह अनफाल की आयत नंबर 44 में मुश्रिकीन के काफिले को, लश्कर को अल्लाह ने मुसलमानों को कम दिखाया और मुसलमानों को, कुफारों को कम दिखाया। उलमा इकराम ने लिखा ताकि हमारे दिल में उनका खौफ पैदा ना हो और उनके दिल में ये बात उनको मालूम हो जाए ये कम है, ये पूरे के पूरे अंदर आ जाए। जमात इस्लामी हिंद खिलवत की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था, जहाँ गैर मुस्लिम मसाब को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था ताकि उन्हें माह रमज़ान मुबारक की अहमियत, इफ्तार के एहतमाम और नमाज के तरीक़ों और उसूलों से आगाह किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। जमात इस्लामी खिलवत की जानिब से मस्जिद उमर बिन खत्ताब मूसाबोली में एक इंटरफेथ इफ्तार और मस्जिद दर्शन, मस्जिद विज़िट का एक प्रोग्राम रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आज हमारे इस प्रोग्राम में, इस मस्जिद में काफ़ी सारे गैर मुस्लिम भाई यहाँ पर आए हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले। हमने आज यहाँ पर उनको बताया कि हम मस्जिद में करते क्या हैं। हमने बताया कि वज़ू कैसे किया जाता है। हमने अज़ान का मतलब उनको समझाया कि हम जो दिन में 5 मरतबा अज़ान देते हैं तो आखिर इसमें बोलते क्या हैं, इसकी तफसीलात हमने जो है यहाँ पर आज बताई। इसके बाद फिर हमने यहाँ पर नमाज़ पढ़ के दिखाया और नमाज में हम क्या पढ़ते हैं ये हमने उनको वाकिफ़ करवाया। और फिर हम सब मिलकर यहाँ पर आज इस मस्जिद में गैर मुस्लिमों के साथ इफ्तार हमने किया और हम खाने का भी हमने यहाँ पर इस मस्जिद में जो है इंतज़ाम किया है। हम ये प्रोग्राम इसलिए रखे हैं कि जो हम मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग मिलकर इस मुल्क में रहते हैं वो एक दूसरे के मज़हब के बारे में, रिलीजन के बारे में, कस्टम्स के बारे में वाकिफ़ हों ताकि गलतफ़हमियाँ न रहें, गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएँ। वो हमको जाने, हम उनको जाने और सब मिलकर प्रेम से, शांति से इस मुल्क में रहें और इस मुल्क की तरक्की के लिए सब मिलकर काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग यहाँ पर शरीक हुए हैं उन्होंने तासुर दिया है कि यहाँ आने से उनको सुकून महसूस हुआ है और उनको बहुत सारे लोगों को पहली मरतबा आए हैं, मालूम हुआ कि पहली मरतबा कि मस्जिद में क्या होता है और यहाँ आकर उन्होंने कहा कि क़ल्बी और ज़हनी जो है उनको बहुत ही सुकून महसूस हुआ, इत्मीनान महसूस हुआ यहाँ आने के बाद। ऑर्डर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने करीमनगर में धान की खरीदी के मराकज़ का इफ्तिताह किया और कहा कि इन मराकज़ के क़याम से किसानों को दरमियानी आदमियों के इस्तेसाल से निजात मिल गई है। उन्होंने कहा कि यासंगी फसल के काटने पर 15 करोड़ थैलों की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत के पास सिर्फ 60 लाख थैले ही दस्तियाब हैं। उन्होंने मरकज़ के रवैये पर भी तनकीद की और कहा कि मरकज़ धान की खरीदी से इनकार कर रहा है, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है। जवाहर नगर के इलाके बालाजी नगर में एक मंदिर में सरक़े की वारदात पेश आई। तारकीन 3 मूर्तियों को लेकर चलते बने, हुंडी को भी तोड़कर उसमें से रकम निकाल ली गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर पंचनामा किया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। మల్లన్న స్వామి ఆలయం బాలాజీ నగర్ ప్రాంగణంలో నిన్న రాత్రి అనుకోని విధంగా చోరీలు చొరబడి ఆలయ ప్రాంగణంలోని స్వామివారి ఉచ్చ విగ్రహాలు మరియు స్వామివారి మీసాలను, వెండి ఆభరణాలను అపహరించడం జరిగింది. కావున స్వామివారి వారు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా సరే వారికి శిక్షించకుండా వదలరు. కాబట్టి ఎవరైతే దొంగిలించారో వారు స్వామివారి వద్దకు వచ్చి స్వామి అనుజ్ఞ తీసుకొని అవి ఏవైతే అపహరించారో వీటిని తిరిగి స్వామివారికి అప్పచెప్పడం వల్ల శిక్షకు అనర్హులు అవుతారు, లేకపోతే శిక్షకు పాత్రలు అవుతారని తెలియజేయడం. नामपल्ली इलाके में दुकानदार साहब एक जालसाज से होशियार हैं, जो दुकानदारों से ही पैसे ऐंठ कर रफू चक्कर हो जाता है। बताया जाता है कि दरगाह यूसुफिन में इस शख्स ने जो खुद को
एक सच्चा और दीनदार मुसलमान जाहिर करता है, मलबूसात की दुकान एमडी खान के पास खरीदी के लिए पहुंचा और दौरान खरीदी दुकान के मालिक से कहा कि वो एक मस्जिद में जान नमाज़ों का इंतज़ाम कर रहा है, चुनाचे उसे 15,000 रुपये की ज़रूरत है। वो इत्मीनान दिलाने के लिए दुकानदार से ये भी कहता है कि वो उनके एक मुलाजिम को अपने साथ भी ले जाए। चुनाचे वो इत्मीनान दिलाने के लिए दुकानदार से ये भी कहता है कि वो उनके एक मुलाजिम को अपने साथ ले जाना चाहता है और वापसी में खरीदी के माल की रकम और 15,000 रुपये वापस कर देगा, लेकिन दुकान के मुलाजिम को ही अपनी मोटरसाइकिल पलटाने का बहाना देकर रफू चक्कर हो जाता है। बताया जाता है कि इस शख्स की जालसाजी का अब तक नामपल्ली इलाके में 3-4 दुकानदार निशाना बन चुके हैं। सलाम भाई, मेरा नाम सोहेल है, मैं एमडी खान में जॉब करता हूँ। नामपल्ली दरगाह के बाजू एमडी खान है, वहाँ जॉब करता हूँ मैं। आज है ना 8 साढ़े 8 के टाइम पे एक कस्टमर आया था मेरे पास, दाढ़ी वाला है, टोपी लगा के मास्क लगा के था, उतारना नहीं था, बैठ के यासीन शरीफ लगा लेके बैठा। मेरे कन 10-15 जोड़े कटा, 15,000 रुपये बिल हुआ उसका। तो मेरे कन कार्ड है बोला है नहीं, तो मैं क्या करा, ठीक है कार्ड है ना, निकाल लो वो तो कैश। नहीं भाई तुम और 15,000 रुपये दो मेरे को, मैं जानी मादा लाना है बोल के बोल रहा था नहीं। तो बोला ठीक है जानी मादा लाना है बोल के 15,000 रुपये कैश दिया और बच्चे को भी भेजा, मेरे साथ वाले को बच्चे को भेजा। तो बच्चे को लेके जाके वहाँ से ऑटो में बैठो बोल के उन्हें भाग गया, फरार हो गया। जानी माज़ों के यहाँ से पैसे आप कैसा दे दिए उसको, ऐसा निकाल के? अब उन्हें ऐसा जानी माज़ों को बोला बोल के मैं बच्चे को भी भिजा रहा हूँ बोल के वो भरोसे पे दिया मैं। उन्हें पैसे कहाँ लेके जा रहा हूँ बोला बच्चे को मल्लेपल्ली तक लेके आ रहा हूँ मैं। वो जानी माज़ों को पैसे देना है, दे के मैं एटीएम से निकाल के 30,000 रुपये एटीएम से निकाल के दे देता हूँ बोला। वो भरोसे पे दिया मैं इसको। जान पहचान कोई भी नहीं, अननोन पर्सन था वो। अपन एक चलो मुस्लिम भाई है बोल के अपन वो हिसाब से भरोसा भी कर लिए थे उसके ऊपर। अच्छा जी। कितने बजे हुआ ये? 8:30 के टाइम एग्जैक्ट। अच्छा हाँ, बच्चे को भी भिजाया मैं, आके बोलो तो क्या भाई मेरे को चलो बोले उन्होंने। मैं गया गाड़ी पे बैठा, उन्होंने बोले मल्लेपल्ली में से जानी मादा ले लेंगे, ऑटो ले लेंगे बोले। मैं बोला ठीक है, ऑटो बात करने के बाद जो सो मेरे को बोले तुम ऑटो में बैठ जाओ, मैं गाड़ी पे आया तो मल्लेपल्ली पे ले लेगा ऑटो वालों को बोले। तो मैं बोला भाई तुम ऑटो में बैठो, मैं तुम्हारी गाड़ी ले लेके आता हूँ। बोला ठीक है बोल के उतर के जो सो गाड़ी स्टार्ट ही थी, उन्होंने ऑटो में बैठे जैसा करके मैं इधर पलट के गाड़ी पे बैठने आए थे, उन्होंने गाड़ी पे भगा लेते चले गए स्टे। गाड़ी तो कौन सा रहे? आवाज़ आ दिया, मैं उनको पकड़ा भी था, उन्होंने आगे निकल गए बहुत। गाड़ी कौन सी कलर कौन सी थी गाड़ी वो? बुरमैन गाड़ी थी। बर्कमैन? हाँ बर्कमैन गाड़ी थी, वाइन कलर था, अच्छा मैरून कलर। TR पे थी नहीं? TR गाड़ी थी। नाम बोले थे आपको? नाम कुछ नहीं बोले थे, टोपी उपी लगा के मास्क लगा लेंगे। और मेरे फ़ोन से 2 फ़ोना भी करे थे उन्होंने। किसको करे? वो किसी को करे थे कि लुंगा उठाए भी नहीं थे फ़ोना, बस मेरे फ़ोन से उनके ओन माइंड से जो सो नंबर मार के करे थे। अच्छा हाँ आप वो फ़ोन नंबर डायल करे फिर? हाँ करा मैं, क्या हो रहा था? नहीं उठा रहे लोग। अच्छा कंप्लेन करे फिर आप? करना है, अब जाके करना है कंप्लेंट। ठीक। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 3,377 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 60 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि कोविड-19 से मुतासरीन की जुमला तादाद अब अपने मुल्क में 4,30,72,176 हो गई है। वहीं इस वबा से 5,23,753 अफराद फौत हुए हैं। मरकजी वज़ारत सेहत का यह भी कहना है कि मुल्क में सेहतियाब होने वालों की शरह 98.74% है।